अच्छा देखो, कोई भी सेंटेंस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वर्ब है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। एक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फाइनाइट, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ वर्ब डिफाइन कर रहे हैं ਕਿਹੜੀ वर्ब है, फाइनाइट। दूसरी ਹੁੰਦੀ है नॉन फाइनाइट। ਇਹ नॉन फाइनाइट वर्ब ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ नॉन फाइनाइट वर्ब फस्ट ऑफ ऑल याद रखना है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मेन वर्ब है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मेन वर्ब नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ वर्ब ਆ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ वर्ब्स ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन वर्ब ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ 1। बाकी सारियां की होनी चाहिए फिर नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखे है आई वॉन्ट गो, कि मैं इधर लिख सकता आई वॉन्ट गो, आई लाइक सिंग। सो इतने सानू समझ आता है कि आ भी एक वर्ब है तो आ भी की एक वर्ब है, बट आज जो बाद में यूज की गई है इन्होंने दोनों चो मेन वर्ब तो एक ही हो सकती ना, दो थोड़ी हो सकती हैं। सो ये फिर फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी च नहीं आती है, कि आती है नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी च आती है। तो फिर आपां इत्थे की लिखना पएगा, टू। आई लाइक ये साडी की बन जाती है मेन वर्ब, ठीक है। सो ये मोरे फिर सानू की लिखना पएगा, टू। या फिर मेरे को दूसरा ऑप्शन की है, मैं की लिख सकना है आई एन जी, आई लाइक टू सिंग या आई लाइक सिंगिंग, दोनों थोड़ा फर्क है, विल सी की फर्क है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब तो नहीं होंगी, बट नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की हो सकती है। कितने तरह की, 3 तरह की, विच इज कॉल्ड जिरेंट, इनफिनिटिव ते पार्टिसिपल। किहड़ी किहड़ी, जिरेंट, इनफिनिटिव ते पार्टिसिपल। सो ये जो जिरेंट, इनफिनिटिव ते पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दो तरह आ जोड़े जिरेंट ते इनफिनिटिव है, इनू आप जे कहना तो इदा कह सकते हैं कि की काम करते नाउन दा। मतलब ये है तो की है, वर्ब है, बट काम कादा करते नाउन दा। इनू तुसी कहोगे कि ये वैसे काम कादा करता है, एडजेक्टिव दा। मतलब वर्ब है बट काम कादा करता है, एडजेक्टिव दा। इतने तक समझ आता है। आप इनू हुणी प्रैक्टिकल पोर्शन से चेक करते हैं। सो देखो, इफ आई से आई हैव गिवन हिम मनी, हैव गिवन हैज इट्स ओन सब्जेक्ट आई। I like to give him money. Like has its own subject I. But to give does not have its own subject. It is not limited by number, person or tense. Finite verb. So out of this, has given the like both are finite verbs called as main verbs.
ठीक है, like and have given are finite verb, these are main verbs. To give is non-finite verb, that means ये main verb नहीं है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, बट ਇਹਦਾ कोई सब्जेक्ट नहीं है. Finite verb has a subject of its own. Non-finite verb does not have subject of its own. Have, given and like are finite verbs, and to give is non-finite verb. So we are talking about non-finite verbs. So that means non-finite verb are of three types: infinitive, gerund and participle. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਰੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਪਾਰਟਸ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ. ਇਹ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ. What is infinitive? What is infinitive? What is infinitive? It is a noun with certain features of a verb. Why we call it as it has certain features of a verb? Because it is made of verb. ਬਣਿਆ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਣਿਆ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਾਉਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਰਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ. ਕਾਦੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਵਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਵਾਈ, ਹਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵਟ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, गर्मी है काफ़ी, ठीक है. सो होर ऑप्शन की है, चॉकलेट हो सकती है, बुक हो सकती है. नहीं, बुक नहीं ना, वो पसंद नहीं है. अच्छा, ओके. सो की मेरे को कोई वर्ब भी हो सकती है. यस, उन्होंने मैं इन्फिनेटिव से लिख सकना. सो आई कैन से आई वॉन्ट टू सिंग या आई वॉन्ट टू गो. की समझ पा रहे हो? I want to sing, I want to go, I want to eat. ठीक है? I want to listen, I want to see. अपन भी पता ना, go, eat, listen, see, verbs ही होंगे. ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਆਪਾਂ to ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, that means ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ऑब्जेक्ट सानू पता है की हुंदा है, पता है कि नहीं? सो ऑब्जेक्ट सानू पता है नाउन हुंदा है, ते ऑब्जेक्ट की जगह ते आ रहा है. सो दैट मीनस नाउन है. बट प्रॉब्लम है कि किस तो बने ये वर्ब तो. सो ਇਹਦਾ मतलब ये भी है कि मैं इन्हां नू भी क्वेश्चन पूछ सकदा है. वट, वट तो स्लो गो दा तां आंसर वट नहीं आंदा, बट गो दा आंसर वेयर आ सकदा है. गो नू वट तो नहीं पूछ सकते ना. अच्छा, ईट नू वट पूछ सकना है, इनू मैं की पूछ सकना है? वट पूछ सकना. ये सही है. मैं इतने वट नहीं पूछ सकता, इतने मैं की पूछ सकना है? वेयर. मैं पूछ क्यों रहा है? क्योंकि वो है तो ना होना भावें, बट वो बनया तो वर्ब तो ही है, तो फिर कुछ फीचर्स हो गए ना आपको वर्ब दे. यस और नो? अच्छा, फिर मैं कਹਾਂ कितने जाना है, मतलब कोई ना कोई जगह ही दसेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू जलंधर. डेस्टिनेशन के लिए आप टू यूज कर लेंगे, टू जलंधर.
क्लीयर है? आई वॉन्ट टू गो कितने? टू जलंधर। जो उन्हें ज़्यादा ही दूर जाना है तू कैनेडा। इज इट क्लियर? सो बट इदा भी हो सकता आई वॉन्ट टू ईट, बट इत्थे मेरा आंसर की होएगा वट। वट मतलब की, सो की खाना चाहता है, सो देन इत्थे फ्रूट्स, वैजिटेबल्स, जो कि आजकल बच्चों को पसंद नहीं है, सो मोस्ट लाइकली पिज़्ज़ा बर्गर। ओके, सो क्या समझ पा रहे हो? वट का आंसर आप सीधा लिख सकते हैं, बट वेयर वैन वाई हाउ का आंसर जोड़ा है वो आप किहदे लिखते हैं? प्रेपोजिशन। किहदे लिखते हैं? प्रेपोजिशन। मैनू दसो कि कुछ समझ आ रहा है कि आप इत्थे खत्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ईट, बट वो कुछ कहेगा भी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स, आई वॉन्ट टू ईट वेजिटेबल्स या कुछ भी। इज इट क्लियर? आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, वो इत्थे खत्म कर सकता है, बट की मैं अगे भी दस सकता कुछ? बिल्कुल दस सकता। आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस, आई वॉन्ट, जे आप मैं सीधे होम दसना है फिर होम के नाल आप टू यूज नहीं करते, होम सीधा ही आ रहा है, आई वॉन्ट टू गो होम। बट जे तुम कोई होर जगह डेस्टिनेशन दसना है फिर तुम टू के नाल डिफाइन करोगे, आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस। इज इट क्लियर? अच्छा, हुण आपां नूं ये भी समझ आना चाहिए। अच्छा, इनफिनिटिव सानू पता है कि हुंदा है, ये वर्ब तो बनता है, बट ये यूज किस तरह हुंदा है? नाउन तो। सानू पता किद्दां लगदा है? इहदे मोहरे की लगा दईदा है? टू। कुछ केसिस है जिथे आप टू नहीं लगाते, बट इत्थे जनरली आप की लगा दें इहदे मोहरे? टू। इट इज जनरली यूज्ड विद टू। अच्छा, इनफिनिटिव कैन बी एक्टिव, पैसिव, एंड इनफिनिटिव कैन बी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इत्थे तुहानूं एक्टिव पैसिव च थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जे तुहानूं नहीं पता हुंदा की है। किहनूं किहनूं पता है? सो सानूं ये समझ आता है कि हुण इनफिनिटिव, इनफिनिटिव की हुंदा एक तरह का नाउन, तो उहदे कोल कुछ फीचर्स हुंदे किहदे, ते इह किहदे नाल जनरली आउंदा है? टू ना। ये एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब एक्टिव ਤੇ पैसिव ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ डिफाइन करिए? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव ਹੁੰਦਾ, टू ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀ V3 लगाई है, बट ਉੱਥੇ ਗੱਬੇ ਕੀ लिखना पएगा? बी। सो की हो जाता है? पैसिव। प्रेजेंट ਤੇ परफेक्ट पैसिव हो सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ही हो सकता है एक्टिव। जे मैं इदा लिखा, ही इज टू डू द वर्क, ਇਹਦਾ मतलब समझते हो की है? वैसे ही इज टू डू द वर्क। जे तुसी ही इज नहीं लिखना, हैज लिख लेने। वैसे इज भी आ सकता है, याद रखना। नहीं समझ पा रहे? ही हैज टू डू द वर्क मतलब जेड़ा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, हले ना उन्हें कीता, ना उन्हें कीता सी, ये हले हुण है। ये समझ आता है? जे मैं कहा आई वॉन्ट टू गो, कि मैं चला गया? जे मैं कहा आई वॉन्ट टू ईट, कि मैं खा लिया? नहीं, नहीं खाता, तभी तो मैं कह रहा मैं चाहता है खाना। सो दैट मीनस जो एक्शन है ये फ्यूचर से होएगा। जो मैं कहा आई वॉन्ट टू गो, मैं गया थोड़ी है, मैं तो जाऊँगा फर्दर। जो मैं कहा आई वॉन्ट टू ईट, तो मैं हले थोड़ी खादा। जो मैं कहा आई वॉन्ट टू सिंग, मैनू थोड़ी माइक दिता हले गाने के लिए। ये समझ पा रहे हो? जो मैं कहा ही हैज़ टू डू द वर्क, हाले थोड़ी उन्हें किया है, बट मैनू इन्ना पता है कि उन्होंने करना पाएगा या उन्होंने करना चाहिए। आई होप तो समझ आता है। मतलब डूअर तो ही होना चाहिए, वो है नहीं या सी नहीं, वो मतलब होना चाहिए। मैं इस तरह कह रहा कि ये समझ आता है? यस और नो?
सो जो मैं इदा कहा ही हैज़ टू डू द वर्क, ਇਹਦਾ मतलब हले होया नहीं है या उन्हें कीता नहीं है, बट मैं ये जरूर कह रहा कि बई ये होना चाहिए इदा, मतलब तो करन वाला कौन होना चाहिए, वो ही होना चाहिए या राम होना चाहिए शाम, जो मैं वो जगह कोई नाउन लिखना था कि मैं इदा पैसे बना सकता, ਇਹਦਾ पैसे इदा नहीं बन जाएगा, काम वो द्वारा होना चाहिए। सो मैं किस तरह लिखूंगा, करेक्ट। सो बेसिकली टू बी नाल केड़ी फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन, बट मैं वर्क नू की लिखूंगा अगे ते ही नू किथे रखूंगा विच। सो ये पैसे बन जाएगा, द वर्क हैज़ टू बी डन बाय हिम। सो इतने स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि बई ये हैज़ आया इतने, आ समझ रहे हो। एक आप टर्म यूज करते हैं हैज़ टू, हैव टू यूज करते हैं, हैज़ टू हैव। इफ ऐसे आई हैव टू गो देयर, मैं कि इधर तो नहीं कह रहा आई हैव टू गॉन देयर, नहीं, आई हैव टू गो देयर। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पैसे वेस्ट करके नहीं बना पाओगे, क्योंकि ਜਿਹੜਾ वर्ड गो ਹੁੰਦਾ है ना, कि गो ਉਹ ट्रांजिटिव ਹੁੰਦਾ ही नहीं है, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है इनट्रांजिटिव। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ पैसे तो नहीं बना पाओगे, बट मैं वैसे दस रहा कि जे मैं ਤਾਂ ਕਹਾਂ आई हैव टू गो देयर, ਇੱਥੇ ਇਹ कोई परफेक्ट टेंस नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ समझना पएगा। पहला परफेक्ट टेंस ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ एक्शन की हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट टेंस किहड़ा होंदा है, जिहड़ा एक्शन की हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो जो मैं इस तरह कहां, मैं हालांकि काफ़ी बार दस चुके हैं, मैं एक बार दसना क्योंकि जे किसी को नहीं पता ना, वैसे आई हैव ए कार, ये किहड़ा टेंस है, इज इट परफेक्ट, कि ये परफेक्ट है, जितने हैव आ गया वो परफेक्ट है। हाँ, एक मैं सेंटेंस लिख रहा, मैं कह रहा आई डू द वर्क, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹਦਾ नेगेटिव बनाओ। हाँ? अच्छा जी, कहते आई, अच्छा इन्हों वर्क छो क्योंकि वर्क च आई डू द टास्क, ठीक है, आई डू द टास्क, मैं काम करदा या मैं ये टास्क करदा, मैंने नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट, ओके, आई डू नॉट टास्क। कई बोल देंगे इदा, मैं इस करके दस रहा, सो दे विल से आई डू नॉट टास्क, आई डू नॉट टास्क। सच्ची कह रहा, मजाक नहीं कर रहा कि समटाइम्स स्टूडेंट से आई डू नॉट टास्क। करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, आई डोंट डू द टास्क, डोंट या डू नॉट डू द टास्क। इतने दो डू क्यों आ रहे हैं, मैंने समझ नहीं आ रहा, दसो। दोबारा, हाँ जी बिल्कुल दसो। कम नहीं किया, मतलब डू जो है ये साड़ी मेन वर्ब है, करेक्ट। फिर आ डू की है, हैल्पिंग वर्ब है ये। अच्छा जी, ये सानू समझ, ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ वर्ब्स करते हो ना, हैल्पिंग वर्ब्स, की वो आप भी वर्ब्स हो सकती हैं कि नहीं, कि उन्होंने सिर्फ हैल्पिंग वर्ब ही यूज कर सकते, नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। मैं तो ये कह रहा है कि जी हैल्पिंग वर्ब्स होंगी हैं कि वो सिर्फ हैल्पिंग ही होंगे, मतलब मेन वर्ब के नाल ही आनी है। हैल्पिंग वर्ब तो पता ना की होंगे, मैं की कह रहा, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी होंगे एक्स्ट्रा, जो हेल्प कर दी है, सपोर्ट कर दी, बट मेन नहीं है, एक्शन कुछ हो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। इफ ऐसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं एक्शन किहड़ा दस रहा, खेडन दा, यस और नो। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज रीडिंग बुक, राम इज
ईटिंग फूड। सो मैं इत्थे जो एक्शन दस रहा वो किहड़ा है, ये सानू समझ आंदा ना किहड़ा एक्शन चल रहा, खेडन दा किहड़ा एक्शन चल रहा, पढ़न दा, खाण दा, यस और नो। मैं की दसन लगा सी, मैं पूछण लगा सी एक्चुअली कि जड़ियाँ हैल्पिंग वर्ब्स है कि ये सिर्फ हैल्पिंग वर्ब वांगू ही यूज होंदी है कि मेन वर्ब भी होंदी है। अच्छा जी मैं कहा राम हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, या राम हैज़ डन द टास्क, या राम हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, ਇਹਦਾ मतलब कि राम काम कर चुका है। सो इत्थे जिहड़ा हैव है ना ਇਹਦਾ कोई स्पैसिफिक मीनिंग नहीं है, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है। बट जे मैं कहा आई हैव ए कार या आई हैव अ बुक, इत्थे ਇਹਦਾ मीनिंग है अपना हैव दा, मतलब ये सिंपल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है। जिवें आई प्ले क्रिकेट, आई हैव अ कार, इत्थे हैव दा मीनिंग है कोल। दैट मीनस हैव दा एक मीनिंग हुंदा है पोजैशन होना, की होना, पोजैशन होना या ओनरशिप होना। जिन्होंने आप कहते हैं ना मेरे कोल है, मेरी है, या आई ओन अ कार, आई हैव अ कार। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ आ रहा किया है। करेक्ट। सो दैट मीनस इत्थे एक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो कि किसी एक्शन दे नाल असी यूज कर रहे हैं। राम हैज़ प्लेड द मैच, राम हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। समझ पा रहे हो कि नहीं? इत्थे मेन वर्ब भी एक्चुअली ये है। सो सानू समझ आता है कि आई हैव अ कार दे विच हैव कोई परफेक्ट टेंस शो नहीं करता, एक ही है फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली इफ आई से आई हैव टू गो, एक कंपल्शन होती है। हैव टू जो टर्म है इन्हों तुसी मॉडल भी कह सकते हो, की कह सकते हो, मॉडल्स, जिवें कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, एक ही होंगे मॉडल्स। इन्हों क्यों यूज करते हैं आप एवं मॉडल्स आप क्यों यूज करते हैं? आ होंगे ना वर्ड्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन्हों आप क्यों यूज करते हैं? उदा पता है यूज करते हैं, यस और नो। जिवें कि कैन हो गया, की हो गया कैन, कुछ करके दिखाओ तो यूज है, करके दिखाओ तो यूज। या मे हो गया, की हो गया मे, एदा यूज करके दिखाओ। करेक्ट। सो इन्हों आप मॉडल्स कहने हैं, की कहने हैं? सो इन जनरल यू कैन से दीज आर मॉडिफायर्स ऑफ सेंटेंसेस। की कह सकते हो? मॉडिफायर्स ऑफ सेंटेंसेस। ਇਹਦਾ मतलब कि मॉडिफायर्स ऑफ सेंटेंसेस। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂसेस ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ मतलब जो आपस में ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ मॉडल्स ਦਾ यूजेज काफ़ी ਕਰਦੇ। क्यों? क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ फीलिंग ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਸਾਨੂੰ ਕੀ यूज़ करने ਪੈਂਦੇ? चलो आप ਇਹਨੂੰ चेक करते हैं। देखो कुछ आप पोर्शन चेक करो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। आप चेक कर देखो, वैसे शी कम्स हेयर टू स्टडी, टू प्लस V1 इन्हों आप की कहने प्रेजेंट एक्टिव। पैसिव कितों हो जाएगा जो इतने की आ जाएगा बी, तो इतने की आ जाएगा V3। कंटिन्यूस क्यों हो जाएगा जो टू के नाल आप यूज़ कर लिया ING ते नाल बी आ जाएगा। अच्छा जे पैसिव होना एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड। देखो जे मैं कहा एवरीवन डिजायर्स टू एडमायर, ये मतलब हर कोई इच्छा रखता है कि वो एडमायर करे, मतलब फिर वो डूअर हो जाता है। बट जे मैं कहा एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड, ये मतलब ये बन जाता है कि हर कोई चाहता है कि ओनू एडमायर किया जाए, मतलब वो रिसीवर होना चाहिए, वो डूअर एक्शन ते नहीं होना चाहिए। की समझ पा रहे हो? थोड़ा तो समझ आ रहा है?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ? ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ, ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਹੈਵ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ, ਇੱਥੇ ਟੂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ? ਟੂ ਹੈਵ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ। ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ये समझ पा रहे हो? दैट मीन्स ए पैसिव है। ओह सॉरी, पैसिव कह रहे मैं, परफेक्ट है। की है? परफेक्ट है। सो थोड़ा ये समझना है, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ, ਡੂਅਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਹੈਵ ਅਰੈਸਟਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਕੀ ਆ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, she seems to be running out of money। ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ, ਬਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਓਕੇ। I want to go, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਓਬੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਡਿਊਟੀ। ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਡਿਊਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਫਰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। She admitted to have been spying for the enemy for some time। So ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਟਿਵ। ਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੂਅਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਟੂ plus infinitive, the verb implying manner, method are know, learn, explain, teach, discover, wonder, show, ask, remember, forget। so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I know, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ I know write letter, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ I know to write a letter, ਠੀਕ ਹੈ। I know to write ਲਿਖ ਸਕਦਾ। it's better to say I know how to write a letter।
हाउ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਈ ਨੋ ਟੂ ਡੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਆਈ ਨੋ ਟੂ ਗੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ नहीं समझ आ रहा नो हो गया taught हो गया I know how to teach and now I know what to teach या अच्छा I taught him मैं उन्हें सिखाया I taught him to cook food no I taught him how to cook food so ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ no ਹੋ ਗਿਆ taught ਹੋ ਗਿਆ learn ਹੋ ਗਿਆ explain ਹੋ ਗਿਆ डिस्कवर वॉन्डर शो आस्क रिमेंबर फॉरगेट सो तुसीं इहनूं जनरल भी जो यूज़ करोगे तुहानूं पता लग जाएगा कि आपां नूं इत्थे की यूज़ करना चाहिए हाउ इज इट क्लियर नैक्सट देखते हैं ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल्स करांगे काफ़ी नैक्सट ਆਪਾਂ एक टर्म यूज़ करते हैं ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ डायरैक्ट इन्फिनेटिव ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ वर्ड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेयर इन्फिनेटिव ਕਿਹੜਾ इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव So infinitive without to we may call it infinitive without to or direct infinitive ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ bare infinitive direct infinitive is used after the verb let bid make know help feel hear watch see direct infinitive is used only when these verbs are used in active voice not in passive voice except the verb let लेट का मतलब की होंगे अलाउ करना ये समझ पा रहे हो कि नहीं इफ आई से ही लेट मी इन उन्हें मैंने अंदर आने लिए अलाउ कर ये समझ पा रहे ये आप परमिशन या रिक्वेस्ट लिए भी यूज कर लेना बड़े याद रखना कमांड परमिशन रिक्वेस्ट ये फिर सबजैक्ट नहीं होंगे सीधे आप कहते हैं लेट मी गो की समझ पा रहे हो मैं की कह रहा इनू आप थोड़ा ध्यान देखेंगे जिमें कि आई मेड द स्टूडेंट राइट एन एसे सो इतने आप किहड़ा वर्ड लिखे राइट कि इतने टू लिखे आप नहीं अच्छा the student was made to write an essay ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ was made to write an essay ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਸੋ ਦ ਟੀਚਰ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ ਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ was let go out by the teacher let ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इधर लिखांगे क्योंकि लेट भी वर्ब होंगी है तो गो भी वर्ब होंगी है सो लेट टू गो आप वर्ड यूज नहीं करांगे तुसी एक टर्म इतों समझ सकते हो उस टर्म को आप कहने पॉजिटिव वर्ब केड़ी वर्ब मैं किहदी गल कर रहा पॉजिटिव वर्ब चलो इन्हें दस कि कभी किसी ने ऐसा सुने कहते हुए गेट द वर्क डन नहीं नहीं सुने ना सुने किने किने सुने हाथ खड़े करो बस नहीं सुना क्या इदा सुने बट पता नहीं होता इफ आई से गेट योर हेयर कट बाय द बार्बर या गेट योर हेयर कट इदा मैं नहीं सुने
नहीं सुने? गेट योर हेयर कट, नहीं सुने? ओके चलो। जनरली यूज एवं मतलब उदा ही यूज कर लेते आप। सी इनू आप कहने पॉजिटिव वर्ब, की कहने पॉजिटिव। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਸੇ गेट योर हेयर कट, मैं की कह रहे गेट योर हेयर कट, हैव योर हेयर कट इदा भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है तो हैव भी हो सकता है, गेट द वर्क डन भी हो सकता है, हैव द वर्क डन भी हो सकता है। अच्छा जे मैं कहा गेट योर हेयर कट, मैं की उन्होंने बाल कट्टन लिए कह रहे हैं कि बाल कटवा के लिया लिए कह रहे हैं? मतलब काम उन्हें करना है कि मैं कहना करा के लिया? नहीं समझ आ। सो जो मैं इदा कहा गेट द वर्क डन, मतलब कोई बंदा इतने खड़ा सी, मैं कहा गेट द वर्क डन, मतलब कि उन्होंने मैं कह रहा कि मैं उन्होंने करा के लिया लेट्स सपोज आ चीज़ टुट गई है, सो मैं किसी को कह रहा गेट दिस रिपेयर्ड, मैं की कह रहा गेट दिस रिपेयर्ड, मैं की कह रहा हूँ रिपेयर कर दे कि मैं कह रहा रिपेयर करा के लिया। आई होप तुहानू समझ आना। अच्छा थोड़ा इनू इदा समझना है तुसी, तो किस तरह भी होंगे। अच्छा इधर आप आ गए, आ दो स्लाइड्स इनू तुसी समझना है। आ पहला ऑर्डर दिता हुआ है, मतलब इनू आप किधर लिखी दे, इनू आप दो तरह लिख सकते हैं, एक्टिव च भी लिख सकते हैं तो पैसिव च भी लिख सकते हैं। पहले मैं दसो, मैं समझावा, समझ नहीं सुनिया तो मैनू नहीं पता तुहानू समझ आना है कि नहीं आना। चलो मैं दस दिना। वैसे राम मेड श्याम डू दिस वर्क, डू हिज वर्क, यदा मतलब इदा बन जाता है कि राम ने आप नहीं करना, राम ने श्याम तो कराना। ये समझ पा रहा हूँ? मैं इदा कह राम मेड श्याम डू दिस वर्क, मैं कह आई मेड यू डू दिस वर्क, मतलब मैं नहीं किया, मैं तेरे तो कराया, मैं वो तो कराया, सो मैं इदा किया कि वो करे। ही लेट हिज फ्रेंड टेक द कार, उन्हें अलाउ करता कि वह दोस्त कार लेके जा सके। आई मेड हिम राइट एन ऐसे, सो मैं नहीं लिखा, मैं वो तो ऐसे दिखाया। नहीं समझ पा रहा? बट तुम इतने नोटिस करोगे कि इत्थे मेरी मेन वर्ब समझते हो, मेड है, इत्थे मेरी मेन वर्ब समझते हो, इत्थे मेरी मेन वर्ब हुन इत्थे जिहड़ा आ मेरी मेन वर्ब नहीं है, ध्यान रखना है। मेन वर्ब ना सेंटेंस इक्को ही होंदी है, बाकी नॉन फाइनाइट होंदी है। की होंदी है? नॉन फाइनाइट। तो तीन तरह हो सकती हैं, कितनी तरह? इन्फिनेटिव, जिरेंड ते पार्टिसिपल। हाले आप जिरेंड ते पार्टिसिपल तो किया नहीं है, इन्फिनेटिव भी कर रहे हैं। सो ये जिहड़ा वर्ड डू है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। की है? तो जो आप पॉजिटिव वर्ब वांगू यूज करते ना एक्टिव दे विच, पॉजिटिव वर्ब वांगू यूज करते एक्टिव, तो आप टू वर्ड यूज नहीं करते। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? सो इतने सीधा टेक लिख देता, टू टेक नहीं लिखा। इतने सीधा राइट लिख देता, टू राइट नहीं लिखा। इतने सीधा कंप्लीट लिखा, टू कंप्लीट नहीं लिखा। ठीक है जी। उस तो बाद अच्छा हुण तुसी ये समझना है कि ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर इस तरह होंदा है कि मैं इत्थे सबजैक्ट लिखदा, इत्थे की लिखदा वर्ब, इत्थे जिहड़ा वर्ड नैक्सट लिखना है ना, ये वो होएगा जिहड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं तो करना नहीं है, किसी तो ही कराना है ना। नहीं समझ आ रहा? किसी तो कराना है। सो दैट मीनस जिन्हें काम करना है वो इत्थे होएगा। तुसीं इहनूं एजेंट कह सकते हो। की कह सकते हो? एजेंट, करन वाला। उस तो बाद तुसीं इन्फिनेटिव यूज करोगे, बट वो जिहड़ा इन्फिनेटिव होना चाहिए है वो की होना चाहिए है? डायरैक्ट इन्फिनेटिव। डायरैक्ट इन्फिनेटिव मतलब वो टू यूज नहीं होना चाहिए। फिर तुसीं ऑब्जेक्ट लिख दोगे।
करना की है फाइनली, सो की करना है, सो की दा आंसर, वट दा आंसर आ रहा है। आई होप तुहानू समझ आ रहा है। ਇਹਦਾ एक होर ऑप्शन होंगे, जे मैं सबजैक्ट तो बाद मेन वर्ब लिखा, उस तो बाद सबजैक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, सबजैक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, उस तो बाद एजेंट ना लिखा, मतलब डूअर ना लिखा, की ना लिखा, मैं किने करना है ये ना लिख के की करना है वो लिखदा, मतलब मैं तो ऑब्जेक्ट लिखदा, की लिखदा ऑब्जेक्ट, उस तो बाद फिर मैं इन्फिनेटिव नहीं लिखदा, मैं किहड़ी वर्ब लिख दिंदा V3। की समझ पा रहे हो? देखो राम मेड शाम डू दिस वर्क, इदा हो सकता है, बट इतने शाम जिहड़ा वो करन वाला है तो वर्क ये होना है, बट जे मैं वर्क नूं पहला लिखदा, मैं इदा कह दूंगा राम मेड द वर्क डन, या राम गेट द वर्क डन। की समझ पा रहे हो? आई, या कोई पर्सन कहता है आई गेट माई हेयर कट, थोड़ा समझ आ रहा है मैं की कह रहा है? आई गेट माई हेयर कट, कट दा थर्ड फॉर्म भी कट ही होंगे, याद रखना। सो ਇਹਦਾ मतलब यह है कि मैं अपने बाल कटा लिया है, या कटा चुका या कटा लिया है। की समझ पा रहे हो कि नहीं? सो तुसीं इहनूं इस तरह समझना है कि सबजैक्ट तो बाद पॉजिटिव वर्ब, दैट मीनस ये तुहाडी मेन वर्ब है, फिर की आ जाता है एजेंट, फिर तुहाडा V1 मतलब डायरैक्ट इन्फिनेटिव आ जाता है, तो फिर की आ जाता है ऑब्जेक्ट। बट हुण तुसीं ये समझना है सबजैक्ट पॉजिटिव वर्ब जे पहला की आ जाए फिर की है, फिर उस तो बाद बाय एजेंट, ये तुहाडी ऑप्शन होंदी है। जिदा आई गेट माई हेयर कट बाय द बार्बर, वो बाय द बार्बर ये मर्जी है मैं लिखना है कि नहीं लिखना। आई गेट द वर्क डन, ठीक है जी, आई गेट द वर्क डन बाय राम और श्याम, से वो मर्जी है तुसीं दसना है कि नहीं दसना। मैं काम करवा लिया, बहुत है, समझ रहे हो? मैं काम कीता नहीं कह रहा, मैं की कह रहा, मैं काम करवा लिया। सो इस तरह मतलब किसी तो करवा लिया, मतलब कीता किसी और ने, बट उन्होंने करन नूं क्या किने, मैं। समझ रहे हो? सो इन्हों आप पॉजिटिव वर्ब कहने। आई होप तुहानूं ये समझ आंदा। अच्छा इत्थे ध्यान रखना, हैव मेक ते लेट दे नाल आपां डायरैक्ट इन्फिनेटिव लिखते हैं, तो गेट दे नाल की लिखते हैं इन्फिनेटिव। डायरैक्ट इन्फिनेटिव कल्ला V1 हुंदा है, तो इन्फिनेटिव की हुंदा है 2 + V1। सो गेट जिहड़ा वर्ड हुंदा है इहदे नाल आपां 2 + V1 लिख दिंदे हैं। हुण इत्थे एग्जाम्पल्स देख लो। सब तो पहला आ समझ आ गया, एक्टिव ते पैसिव दोनों समझ आ गए। हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो गेट दा पास्ट की हुंदा है गॉट। सो जे मैं इत्थे गॉट लिखिया, मतलब ध्यान रखना है गेट दी वर्ब है, किहड़ी वर्ब है? गेट दी वर्ब है। तो उस तो बाद देखो सीता गॉट गीता डू हर वर्क नहीं है, इत्थे की है टू डू। ये समझ रहे हो? सीता गॉट हर वर्क डन, कला इत्थे तक भी हो सकता है, बाय गीता ये भी नाल हो सकता है। सो दैट मीनस इत्थे एजेंट बाद च लिखिया, पहला की लिख दिता होया की है, इन्हों आप पैसिव कहांगे। भाई मैं क्योंकि मैनू नहीं पता कि तुहानूं इहदा स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता, बट मैनू इन्ना जरूर मैनू पता होंदा है कि बच्चों को पता होवे ना होवे, बट सुनिया जरूर होंदा है। तुसीं सुनिया नहीं है, बट इट माइट बी हार्ड टाइम फॉर यू कि भाई इनू समझना किद्दां है? सुनिया पता नहीं समझ, जे सुनिया तो फिर तुहानूं समझ आएगा। आ रहा है समझ? किन किनू आ रहा है? इतने भी गेट आ गया, बट इतने हिज हाउस है, तो इतने पेंटेड है, ये V3 है, ये ऑब्जेक्ट है। जे मैं इतने बाय लिखना हो तो मैं कहूँगा बाय पेंटेड, कैसा और नो?
जे मैं इतने पेंटर अगे लिखा तो मैं इदा लिखूंगा ही विल गेट द पेंटर टू पेंट द हाउस। टू पेंट इस करके क्योंकि गेट है। जो मैं इतने हैव लिखना ही हैव द पेंटर पेंट हिज हाउस, फिर टू पेंट मैं नहीं लिखूंगा। जिदा ही लेट हिज फ्रेंड टेक द कार ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ही let his car taken by his friend। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮਨ ਐਰਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शाबाश शाबाश, दसो दसो। हाँ बिल्कुल मेरी जितना मर्जी कर लो, पहले दसो तो सही। इट्स बेटर इफ यू डू ट्रांसलेशन, इट्स बेटर। हाँ नहीं सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन भी होती है। यही मीनिंग है, ठीक है। एलिगेशन का पता ना की होंगे? अच्छा इस तरह आ जड़ा पोर्शन है हु प्लेज ए डिटेक्टिव इन द फिल्म, ये समझ आंदा है कि ये एक्टर बारे इंफॉर्मेशन देती है, ऐसे ही होंगे ना। जो मैं इधर लिखा द पर्सन हु इज wearing let's suppose red shirt is my cousin। कि ये समझ आंदा मैं ये कह रहा द पर्सन इज माई कजन, बट तुसी पर्सन ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼? ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੇ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ नहीं आई। बट मैं इदा कहा द परसन हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई कजन, तो समझ आएगा। सो दैट मीनस जो स्टेटमेंट है हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, ये
सबॉर्डिनेट क्लॉज है जिन्हों आप एडजेक्टिव क्लॉज कहने हैं, बट ये मेन क्लॉज के उत्ते की है, डिपेंडेंट है। आया कि गया सब ओके। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੂ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮ। ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ नो? ठीक है, मेन सेंटेंस किहड़ा है? द एक्टर alleged to have pushed the director। ऐदी है, यस और नो? अच्छा, इत्थे टू पुश क्यों नहीं लिखा, टू हैव पुश्ड क्यों लिखा है? मेरा क्वेश्चन ये है, why it has written to have pushed instead of writing to push? हाँ जी, सिंपल क्यों है? एक सिंपल एक्टिविटी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। इदा नहीं है। देखो ਜਿਹੜਾ वर्ड है ना टू पुश, ये इनफिनिटिव हो जाता है। की हो जाता है? ये फर्दर का एक्शन होंगे। ये कहता एक्शन होंगे, हाँ, जो मतलब आना है हले नहीं। मैं समझाया सी वैसे, आई वॉन्ट टू गो मतलब मैं चला गया कि हले जाना है। जब मैं कहा आई वॉन्ट टू ईट मतलब मैं कि मैं खा लिया हले खाना है, मैं चाहता ना हले खाना। नहीं समझ आ रहा? वैसे आई लाइक टू रीड कि मैं पढ़ लिया कि हले मैं पढ़ना है। पढ़ना ही है तो चाहता ही है तो पढ़ना है। नहीं समझ आ रहा? जे मैं इस तरह कहा जिवें वो सेंटेंस ही आई एडमिट टू हैव डन दिस, आई एडमिट टू डू दिस नहीं होंगे, क्योंकि जे मैं कुछ एडमिट किया है तो बट ऑबवियस मैं फ्यूचर का नहीं कर सकता, इदा तो बना नहीं सकते आप। हाँ, मैं कुछ पास की एक्टिविटी जो हुई होएगी मेरे तो या किसी तरह मैं उन्होंने की कर सकता है। सो मीनस इतने परफेक्ट इनफिनिटिव आना चाहिए, यस और नो? अच्छा, तुम ये दसना है कि इतने जो एलीगेशन है, अलीगड मीनस एलीगेशन तो बनया जो वर्ड जो कि होंगे दोष लगाना, इतने एक्टर ने दोष लगाया है कि एक्टर ते दोष लग गया है? एक्टर ते दोष लगता है, लग गया, ये समझ आता है। तो जो दोष लग गया वो यही लगा होगा कि उन्हें पहला उन्होंने मतलब वो धक्का मार चुका होएगा कि हले मारना है। तो जो मार चुका होएगा तो ही तो दोष लगेगा ना, मारन का दोष कितना लगेगा? उन्हें कहा लाया मैं धक्का मारे तू मेरे तो दोष लगा रहे। नहीं समझ आ रहा? ये समझ आता है कि नहीं? मतलब ये सही है ना? तो आप पुष्ट पर आप एक्टिव पैसिव किते, यस और नो? जे मैं कहा उदो मैं समझाया सी इफ आई से 3 किल्ड, इसका मतलब कि 3 मर गए कि 3 ने मारिया है? बैक टू द बेसिक्स। 3 मर गए, बट मैं इदा नहीं दसाया। ये वैसे हंटर किल्ड मतलब हंटर मर गया, तो फिर 3 किल्ड मतलब 3 मर गए। फिर वैसे ही किल्ड दैट मीन्स वो मर गया, उन्हें मारा ही होएगा कि नहीं? कदों मर गया होएगा या उन्होंने मारिया होएगा? ही वॉज किल्ड, द हंटर वॉज किल्ड, 3 वर किल्ड। 3 वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट कि 3 किल्ड इन एन एक्सीडेंट? 3 वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। नहीं समझ आ रहा? ये वैसे आई अलेज्ड, मैं क्या कह रहे हैं? आई अलेज्ड हिम मतलब कि मैं दोष लगाया कि मेरे तो दोष लगा? मैं लगाया होएगा ना।
इफ आई से आई alleged him, मैं दोष लगाना है इत्थे, लगाया सी मतलब, समझ पा रहे होंगे। इफ आई से आई वाज alleged by him, मेरे ते दोष लगाया होना है, ठीक है। इवन इफ आई से आई वाज alleged मतलब मेरे ते दोष लगा। शुड आई से द एक्टर alleged or should I say the actor was alleged या is alleged? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟਿਵ है कि पैसिव है? दसो पैसिव है पक्का, लॉक कर दीजिए, ठीक है। मैंने दसो ये केड़ा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है पैसिव का, क्योंकि तुसी रूल लिखे नहीं, वो मैं समझ गया रिसीवर, मतलब कि ये की है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? पास्ट है। अच्छा पास्ट विचों केड़ा है? सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस? हाँ पास्ट परफेक्ट का पता किहड़ा हुंदा है? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। So if I say I like to sing, I like singing, singing is my hobby and saw a singing bird. So ਜਿਹੜਾ verb portion ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ verb ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ verb यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ verb ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੁੰਦੀ ਉਹ verb ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਊਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੇਨ verb ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ verb ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ verb ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा हुण जिहड़ा दूसरा है पोर्शन वो वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है। उहनूं तुसीं कहोगे नॉन फाइनाइट, की कहोगे? नॉन फाइनाइट। अच्छा हुण नॉन फाइनाइट जे मेन वर्ब नहीं है तो वो की हो सकती है? वो तीन तरह दी चीज़ों का काम कर सकती है। की समझते हो? इत्थे पहला जिहड़ा पोर्शन है उहनूं आपां कहने आ इनफिनिटिव, दूसरा जो पोर्शन उन्होंने आप कहने हैं, अच्छा जी पता सब कुछ है, जिरेन। तीसरा जो है उन्होंने आप की कहने हैं पार्टिसिपल। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਬ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ 2 + V1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ V + ING ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਨਾउन ਦਾ। ਆ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆ ਜੋ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਵਰਬਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੌ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ नो? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਟ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਵਟ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆंसर ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਔਰ नो? ਕੀ ਆंसर ਆਂਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਟੂ ਸਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਿੰਗਿੰਗ, ਤੀਜੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਾਈ ਹੌਬੀ, ਚੌਥੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਹੀ ਆंसर ਵੈਸੇ। आई सॉ की अ बर्ड। मैं इधर तो कह नहीं सकता आई सॉ सिंगिंग, मैं सिंगिंग देखिया, पॉसिबल है? ये तो कोई मतलब ये नाउन तो नहीं है, मैनू समझ आता है। वर्ब इस करके नहीं है क्योंकि मैनू पता है वर्ब की है सॉ। समझ रहे हो? ये समझ आता है कि सॉ देखिया मेन वर्ब है, की देखिया वो बाद की गल है, वो साडा आंसर आ जाएगा नाउन का। वो सानू समझ आता है वो की है बर्ड, बट वो नॉर्मल बर्ड नहीं सी। आई सॉ ए ब्यूटीफुल बर्ड, मैं इदा भी कह सकता है। ब्यूटीफुल कोई वर्ब तो होंगे नहीं कि होंगे? नहीं होंगे ना? की होंगे? एडजैक्टिव ही होंगे ना। वो कोई खास तरह का जो बर्ड है, जो मैं स्पैसीफाई करना है तो वो मैं एडजैक्टिव ही यूज़ करूँगा। बट इतने जो मैं यूज़ किया वर्ड सिंगिंग, सो सानू पता है सिंग एक वर्ब है तो सिंगिंग एक वर्ब है, एक्शन, ठीक है, ING के नाल लगाया। बट इन्हों मैं यूज़ किस तरह कर रहा है? एडजेक्टिव दे वांगू। किस तरह यूज़ कर रहे हैं? एडजेक्टिव दे वांगू। हुण जे आपां इन्हां दोनों च डिफरेंस देखिए कि दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, सेंटेंस दोनों ही सही है, बट कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। इफ आई से आई लाइक टू सिंग या आई लाइक सिंगिंग, कि दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं, दोनों के मीनिंग च डिफरेंस है। हाँ, वो तो डिफरेंस है, मीनिंग दे विच की डिफरेंस है। की डिफरेंस है? हाँ, दसो की डिफरेंस है? पहला मैनू गाना गाना पसंद है, दूसरा गाना तो इतने है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाना गाना मतलब दो चीज़ें तो नहीं है इतने। मैं इतने सिंगिंग अ सॉन्ग, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, इस तरह का कुछ लिखा नहीं मैं, या सॉन्ग नहीं नहीं लिखा ना, तो फिर गाना गाना तो नहीं है कल्ला गाना तो है, गौना सॉरी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मैं गाना चाहता है तो दूसरा मैनू गाना पसंद है। देखो तुम इनू इस तरह समझ सकते हो, प्रेजेंटली मैं ये कहना चाहता आई लाइक टू सिंग, ये मतलब मैं फ्यूचर की एक्टिविटी दसन की कोशिश कर रहा। की दसन की कोशिश कर रहा है? फ्यूचर की एक्टिविटी। जे मैं इनू डिफाइन करा, जे ये भी कोई एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, आ ए तो की होएगी? बाद विच होएगी। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? इनू मैं इस तरह क्यों कह रहा एक्टिविटी? क्योंकि एक्चुअली एक को कुछ फीचर्स है कादे वर्ब दे। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वैसे आई लाइक टू सिंग, ਇਹਦਾ मतलब मैनू पसंद है कि गाना, सो आई लाइक टू सिंग। जे मैं किते गया, लेट सपोज, ठीक है, मैं उत्थे कह रहा आई लाइक टू सिंग, किसी फंक्शन से गया तो मैं उत्थे की कह रहा आई लाइक टू सिंग, वो मैनू माइक फड़ा देगा, कहना गल है नहीं समझ आ रहा। मैं उन्होंने जाके कह रहा आई लाइक टू गो, वो कहना ठीक है जा। की समझ पा रहे हो कि नहीं? बट मैं उन्होंने जाके कहा आई लाइक सिंगिंग, सो मैनू गाना फड़ाएगा नहीं माइक, अच्छा कहेगा अच्छा ठीक है तेन पसंद है, ओके। बट जो मैं कहा आई लाइक टू सिंग, मतलब उन्होंने पता लग जाएगा कि मैं चाहता है कि मैं हूँ फरदर जी एक्टिविटी है वो कि गावा करा, गाउन वाली। नहीं समझ आ रहा? पिछे कुछ मैं दसिया है, कुछ समझ आया?
ਕਰੈਕਟ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਊਚਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੋਇਆ नहीं है, हो जाएगा। कि समझ पा रहे हो? ये जनरल है, आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। हुण तुसीं ये ध्यान रखना है। अच्छा पहला इनू मैं इनू समझा देना, सिंगिंग इज माई हॉबी, ठीक है। इत्थे जिहड़ा वर्ड है सिंगिंग, ये भी तो एक वर्ब तो ही बनया, बट की ये वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा की है सेंटेंस का सबजैक्ट। मैं गल ही यदि कर रहा तो सबजैक्ट तक कभी वर्ब नहीं हुंदा, वो हमेशा की हुंदा है? नाउन। यस और नो? इनू मैं कहूँगा इनफिनिटिव है, इनू मैं कहूँगा की है जिरेंड है, क्योंकि आंसर है ना, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। इनू भी मैं की कहूँगा अगेन की है जिरेंड है। अच्छा फिर इनू मैं की कहूँगा? इनू मैं कहूँगा पार्टिसिपल है। इनू मैं ना जिरेंड कह सकता है ना, इनफिनिटिव तो है नहीं ना। सो मैनू किद्दां पता लगे जिरेंड नहीं है पार्टिसिपल है? मतलब ये नाउन नहीं है, एडजैक्टिव है, क्योंकि मैनू एडजैक्टिव वांगू यूज किया। मैं एक क्वेश्चन पूछदा, तुसीं मैनू दसो तुहानू की समझ आंदा है? मैं इस तरह लिखे हंटिंग एनिमल्स इज नॉट अलाउड, इज या आर नॉट अलाउड देयर या हेयर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैंने तुसीं ये दसना है कि मैं चो वर्ब किहड़ी यूज करा। पहला इस वाले हथ खड़े कर लो, इदां नहीं हथ खड़ी करीदा हुंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर वाले हथ खड़े करो। तुसी इस च भी ते आर च भी आर तुसी इस च हाथ नहीं खड़ा किया है? अच्छा आर वाले हाथ खड़े करो दोबारा। हुण जे मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा ध्यान देना मैं की कह रहा। कुछ अलाउड नहीं है ना, ऐदा है ना, कुछ अलाउड नहीं हैगा। हुण तुसीं मैनूं ये दसना है कि हंटिंग अलाउड नहीं है कि एनीमल्स अलाउड नहीं है? हाँ पक्का? हुण जे मैं ऐदा कहां हंटिंग अलाउड नहीं है, फिर तो मैनूं समझ आंदा मैं इज लगाऊंगा। बट जे मैं ऐदा कहां एनीमल्स अलाउड नहीं है, फिर मैनूं समझ आंदा मैं की लगावां? आर। बट मैं इत्थे की कहना चाहुंदा है कि जानवर अलाउड नहीं है। ये कोई पार्टी थोड़ी है जिथे बाहर बोर्ड लगा हुआ एनिमल्स आर नॉट अलाउड। नहीं समझ आ रहा है? आर आना है कि इज आना है? इज आना है। क्यों इज आना है? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एनिमल सही नहीं, मेरा सब्जेक्ट की है हंटिंग है। सो मैंने दसो मैं किद्दां आर लगाऊंगा? मैं की कहां? मैं इदा कहूँगा हंटिंग एनिमल्स इज नॉट अलाउड। सो तुसीं कहोगे इत्थे एनिमल्स आया बट इत्थे आर नहीं आया, वो इस करके क्योंकि मैं एनिमल्स दे बारे गल नहीं कर रहा, मैं हंटिंग दे बारे गल कर रहा। मैं हटा भी सकदा, हंटिंग इज नॉट अलाउड है। इत्थे कोई एक पर्टिकुलर टर्म भी आ सकता है, हंटिंग डेयर या हंटिंग लॉयंस या लॉयन, की समझ रहे होंगे? नहीं, हंटिंग कुछ भी हो सकता है, बर्ड्स या पैरेट या कुछ भी। बट की अलाउड नहीं है? मैं तो थोड़ी को पैरेट अलाउड नहीं है, को मतलब थोड़ी है। क्या समझ आ रहा है? तुसी ये समझना है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਹੰਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਰੰਡ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਰੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਬਲ ਨਾਉਨ that means noun ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ verb ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਉਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕੋ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੇ verb ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਵਰਬ ਦੇ ਸੋ ਵਰਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੰਟਿੰਗ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਬਟ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜਿਰੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਰੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਵਰਬਲ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੇ ਵਰਬ ਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਰੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਵਟ ਵਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਵਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਟ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅ ਸੌਂਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ ਵਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੇਅਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਵੈਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਿੰਗ ਐਟ time particular time in the evening I like to sing in the evening when sham nu which ki kid acha theek hai ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਟਿਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੌ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬ ਕੋਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ कि आई होप समझ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल देखो इतने एब्जर्ड जा हो जाएगा मैं इधर लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल मैंने दसो की है मेरे कहने का मतलब है प्लेइंग जो वर्ड है ये मेन वर्ब है मतलब फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है मतलब ये नाउन है एडजेक्टिव है कि वर्ब है हाँ जिरंड है ये देखो तुसी इदा कहो ही लाइक्स प्लेइंग मैं की कह रहा उन्होंने पसंद है कि खेडना सो ये जिरंड है मैं ही लाइक्स टू प्ले भी लिख सकता वैसे मैं ही लाइक्स टू प्ले की समझ आ रहा है बट मैं तो कह रहा ही लाइक्स तुसी उन्हें पूछोगे की पसंद करता है मैं की कहूँगा प्लेइंग आ हुन की है हाँ मेन वर्ब है बिल्कुल एक ही है मेन वर्ब है इनू जे तुसी पार्टिसिपल दा जिरंड बनाना देखो कितना अजीब जिहा लगदा है इफ आई से ही इज ए प्लेइंग फुटबॉल क्योंकि मैनू फिर इत्थे इनू नाउन बनाना पएगा ना प्रॉपर जे मैं इत्थे ए लगा दा सो इफ आई से ही इज ए प्लेइंग फुटबॉल इहदा मतलब पता की बन जांदा है कि वो फुटबॉल है किहड़ा फुटबॉल प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं इनू यूज कर रहा एज एन एडजेक्टिव पॉसिबल है मैं इस तरह यूज करा नहीं समझ आ रहा है ना कुछ समझ नहीं आ रहा
ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Can I say he is a playing football? ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਸੈਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੈਟ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾउन ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਾउन ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾउन ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ। ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ? ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖੀਦਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੀ ਸੇਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੀ ਤੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ? मतलब कि ये दोनों सेम ही है कि डिफरेंट डिफरेंट है? सेम है ना। सो ये उन्होंने जोड़न का काम करता है, मतलब ये सब्जेक्ट है तो ये भी एक्चुअली एक तरह का की है, सब्जेक्ट ही है। तुसीं इहनूं सब्जेक्ट ना कह के की कह दिंदे हो? कॉम्पलीमेंट। बट जो तुसीं कोई वर्ब लिखोगे, स्टेट ऑफ बीइंग लिखोगे, मतलब स्टेट दसोगे, समझ रहे हो कि नहीं? उदों जो नैक्सट पोर्शन आएगा वो इहनूं ही बिलोंग करता होएगा। मैं दसो कि ये राम ते डॉक्टर कोई अलग अलग है कि राम ही है? सेम ही है। सो जे वो दोनों चीज़ां सेम है तो मैं इदा थोड़ी कहूँगा इन्हें ये उत्ते कोई एक्शन किया। मैं कह सकता राम ने डॉक्टर से कोई एक्शन किया? नहीं ना, वो राम तो आप ही है, एक डॉक्टर है। सो फिर मैं इन्होंने दोनों को जोड़ ही सकता, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ होर तो कुछ नहीं कर सकता, तो जोड़न लई मैनूं लिंक क्रिएट करना पएगा। सो इस करके मैं इज यूज़ कर दूँगा। इत्थे इज ही मेन वर्ब है। दिस इज अ चेयर, जे मैं कਹਾਂ दिस इज अ चेयर या दिस इज अ चेयर, कि मैं दिस जी गल कर रहा वो चेयर ही है? नहीं, इदा थोड़ी कर रहा मैं कि दिस ने चेयर ते कोई एक्शन किया, इदा तो कुछ है नहीं। इट इज अ चेयर, लेट सपोज, ठीक है। सो ये दोनों तो सेम ही है। इतने सानू समझ आता है दोनों सेम नहीं है। यस, if I say she cooks food, she cooks food, या she drives car, so सानू समझ आता है she ते car अलग अलग है, she ते food अलग अलग है, तो कोई ना कोई एक्शन कर रही है उहदे ते। समझ आ गया? कुछ और पूछना है इहदे च? नहीं। आ सानू हुण आई होप तुहानू क्लीयर हुंदा है कि बई इनफिनिटिव भी हुंदा है, जिरेंड भी हुंदा है,
ये दोनों की हुंदे ते पार्टिसिपल भी हुंदा है। ये की हुंदा है बट तुहानूं मीनिंग समझ आएगा उत्थे। अच्छा फिर जिहड़ा आ इनफिनिटिव आपां कह दिंने आ परफेक्ट, किहड़ा परफेक्ट, इनू समझना है किहड़ा किहड़ा इनफिनिटिव परफेक्ट। अच्छा जिहड़ा इनफिनिटिव है वो सानू समझ आंदा है कि आ जिहड़ा पोर्शन है फ्यूचर दा गल, फ्यूचर दी गल कर रही है। जिवें कि आई वांट टू गो, आई वांट टू मीट यू माई फ्रेंड, आई वांट टू मीट माई फ्रेंड, मतलब मैं मिलना है, हले मिलिया नहीं है। मैं जाना है बट हले गया नहीं है। मतलब मैं फ्यूचर च मैं इदा कह रहा कि इदा हो जाए, मतलब करूँगा मैं। नैक्सट जो एक्शन है मैं करना, आई वॉन्ट टू मीट हिम टमोरो, मैं उन्होंने कल मिलना चाहता है। सो मतलब मैं कल मीट वाला एक्टिविटी पूरी कर दूंगा। इज इट क्लियर? आई रिमेंबर टू मीट यू, आई रिमेंबर टू मीट यू, एक ही सही है? सही है कि गलत है? कोई आइडिया ही नहीं है कि सही है कि गलत है। ये गलत है। रिमेंबर तुसी की कर सकते हो जी आने वाली चीज़ है। मतलब मैं रिमेंबर कर रहा कि फ्यूचर इदा है, और रिमेंबर मैं कितना करूँगा? रिमेंबर का मतलब की होंगे? हाँ, याद करना ना दोबारा कोई चीज़ नू, फिर वो केड़ी होएगी जी बीत चुकी है? नहीं, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए है पहला। यस और नो? सो मैंने इत्थे हैव लिखना पाएगा। तो मैं इत्थे की लिखूंगा? आई रिमेंबर टू हैव मेट यू, मैनू याद है मैं तेनू पहला मिलिया सी। नहीं समझ आ रहा? मैनू इत्थे हैव क्यों लिखना पिया? क्योंकि ये एक्टिविटी पहला कंप्लीट हो चुकी है रिमेंबर तो, जिहड़ा मेरा मेन वर्ब सीगा ना, उस तो बाद नहीं मैं कुछ कह रहा, वो तो ये पहला ही है, खत्म हो चुकी पहला ही। नहीं समझ आ रही? आ रही है कि ये नहीं आ रही? सो सब तो पहला ये समझना है, इफ आई से, सब तो पहले ये समझ आ गया, ठीक है। आ जिहड़ा टेंस सीगा ये आपां इस तरह कह रहे हैं कि इस तरह सी कुछ कि द एक्टर अलेज टू हैव पुश द डायरेक्टर। ये ठीक है, टू हैव पुश द डायरेक्टर मतलब उन्हें जो दोष लगा है वो फ्यूचर का तो पॉसिबल नहीं है ना। दोष केड़ा लगा होगा? पास्ट उन्हें कुछ किया होगा ताई उत्ते एलीगेशन लग गया। यस और नो? सो टू पुश का तो कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। आ सही है, बट इत्थे समझना है कि आप एक्टिव पैसिव भी किया सी। जे मैं इदा कहां एक्टर अलेज्ड, दोष फिर एक्टर लगा रहा है, तो समझ आना चाहिए। एक्टर ते लगा नहीं है। इज इट क्लियर? जिहड़ा पैसिव होंदा है, जे तुसीं उह चेक करो किहदे विच, पैसिव दे विच उह हमेशा सानू हैल्पिंग वर्ब चाहिए ते नाल मेन वर्ब चाहिए। कि मैं नहीं दस्सिया सी? ठीक है, सानू की चाहिए है? हैल्पिंग वर्ब ते मेन वर्ब। हैल्पिंग वर्ब जे प्रेजेंट है तो इज एम आर चाहिए है, जे पास्ट है तो की चाहिए है? वॉज। सो आप इतने प्रेजेंट लगा देंगे क्योंकि सानू समझ आता है कि इतने प्लेज लिखा है, मतलब जो ओवरऑल जी इन्फॉर्मेशन चलती है वो प्रेजेंट च ही हैगी है। सो मैं इस तरह नहीं कह सकता एक्टर अलेज्ड, मैं इस तरह कह सकता एक्टर इज अलेज्ड। इफ आई से एक्टर अलेज्ड, ਇਹਦਾ मतलब एक्टर ने दोष लगाया। जे मैं कहा एक्टर इज अलेज्ड, ਇਹਦਾ मतलब की बनता है एक्टर ते दोष लगा। मैंने कुछ एक्टिव पैसिव सेंटेंस बना के दिखाओ जी, की करना तुसीं। दो सेंटेंस लिखो जो एक्टिव है। एक्टिव की होंगे जिस सबजैक्ट की होवे
डूअर ऑफ द एक्शन। पैसिव की होंगे जिस सबजैक्ट की होवे करो तो की करते हो तुसीं देखते हैं। जो इस तरह लिखा है द एक्टर इज अलेज्ड टू हैव पुश द डायरैक्टर, एक्टर ते दोष किने लाया ये नहीं दसिया, दोष क्यों लगाया ये दसिया। नहीं समझ आ रहा? अच्छा तुसी एक ये चीज़ भी समझ सकते हो, ये हुण तुहानूं पता नहीं समझ आए ना आए, जो मैं इदा किया ना आई रिमेंबर टू हैव मैट यू, आई रिमेंबर टू हैव मैट यू, मैनू इदा भी लिख सकना आई रिमेंबर दैट, मैं इत्थे की लिखिया दैट आई हैव मैट यू, मैनू याद है कि मैं तेनू मिल चुका है। नहीं समझ आ रहा? एक और एग्जाम्पल देना मैं, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज या फिर आई होप टू विन द प्राइज, ये समझ आता है? मैनू दसो वर्ब की है विन के होप, कन्फ्यूजन तो नहीं? सो हाँ तुम इन्हू पूछोगे मैं की होप करदा दैन तुहानू दस देगा कि की होप करदा, मैं जितना होप कर रहा, ठीक है, क्योंकि इनफिनिटिव ये भी वर्ब तो ही बनता है। सो मैंने वो एक ये भी पूछना अच्छा की ओ मैं होप करदा की जितना की एक प्राइज, इज इट क्लियर? मैनू इस तरह भी लिख सकना है जिदा इतने दैट आ जाए ना फिर मैं इन्फिनिटिव नहीं लिख सकता, फिर मैं इतने इन्फिनिटिव नहीं लिख सकता, इतने मैंने फ्यूचर की गल करनी पेगी, इतने मैंने जी हो चुकी है वो गल करनी पेगी। वो क्यों? क्योंकि इतने मैं परफेक्ट लिखा सी, इतने मैं वो तो पता ही आप फ्यूचर जाना ही है, फ्यूचर की गल करनी। आ भी सही है, आ भी सही है, आ भी सही है, आ भी सही है, कि समझ पा रहे हो कि सिर तो ऊपरों निकल गया है, आ गया, ओके पकड़ च आ गया कि नहीं? अच्छा इत्थे तो प्रेजेंट है की है, प्रेजेंट है। सो जे मैं इदा कह इस तरह आप कहने हैं जिवें वो सेंटेंस है किहड़ा सीगा आई एडमिटेड की सीगा आई एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? जे मैंने इदा ना लिखना हो मैं इदा लिख सकता आई एडमिटेड, ये प्रेजेंट है कि हुण पास्ट है? आ रिमेंबर प्रेजेंट सीगा कि पास्ट सीगा? नहीं समझ पा रहे? आ प्रेजेंट सीगा ना, आई रिमेंबर का मतलब कि मैनू याद है, आई रिमेंबर्ड हुंदा ना कि मैनू याद सी, यस और नो? इत्थे एडमिटेड है तो मैं जे इत्थे दैट लिखा तो हुण तो मैनू ये समझ आना चाहिए है कि जिहड़ा नैक्सट आ टू हैव अब्यूज्ड है, सो ये एडमिट करन तो पहला दा एक्शन है। आंसर आना है तुहाडा, मतलब ये टेंस तुहानू पता कि लिखना पएगा, कि लिखना पएगा पास्ट परफेक्ट। की समझ पा रहे हो? आ पास्ट है, आ पास्ट परफेक्ट है, ताई ना तुहानू पता लगेगा पास्ट तो पहला दा इवेंट है, मतलब ये सेम सेंटेंस मैं इदा भी लिख सकना। सो आप ये कर लिया सी, टाइप्स कीतियां सी, इनफिनिटिव कीता, एग्जाम्पल्स हाउ टू इनफिनिटिव, डायरैक्ट इनफिनिटिव, ठीक है। नैक्सट आप करना सी जे आप इत्थे यूज करिए हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, एज सुन या सूनर दैन,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ। ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਬੈਟਰ, ਹੈਡ ਰੈਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਰੈਦਰ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਬੈਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਵੁੱਡ हैड बेटर या आई वुड रैदर बेटर लीव योर हाउस एट वंस। सो ये ज़्यादा वधिया होएगा कि जो मैं तेरे घर नूं एकदम लीव करदा। सो जो मैं लिखूँगा आई वुड या आई हैड, सो इत्थे जिहड़ा वर्ड लिखना मैं फरदर लीव, उत्थे मैं टू लीव नहीं लिखूँगा, कि लिखूँगा सिंपल लीव। बट इत्थे तुसीं ध्यान रख सकते हो हैड बेटर होवे, हैड रैदर होवे, वुड रैदर होवे, वुड बेटर होवे, समझ पा रहे हो, बैटर होवे या रैदर होवे। उस तो बाद जिहड़ा वर्ब आना चाहिए वो की होना चाहिए, वर्ब दी फस्ट फॉर्म। रेयर यूज होंदा है बट यू शुड नो मीनिंग दोनों का सेम है। अच्छा डायरेक्ट इन्फिनेटिव इहदे नाल भी यूज होंदा है, वाई नॉट या वाई नॉट रेस्ट नाउ या वाई रेस्ट नाउ, वाई नॉट स्टे हेयर या वाई स्टे हेयर। इज इट क्लियर? नीड भी जिहड़ा वर्ड है ध्यान रखना है, जे मैं नीड कला लिखा या नीड दे नाल नॉट लिखा, जे मैं कला नीड लिखा या डेयर लिखा तो मैंने टू लिखना पएगा। बट जे मैं नीड ते डेयर दे नाल नॉट लिखदा तो मैंने टू लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि नीड नॉट ते डेयर नॉट ये बन जाते हैं मॉडल्स। की बन जाते हैं मॉडल्स। किहड़े मॉडल्स? जिमें कि होंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इफ ऐसे आई कैन तो बाद मैं टू डू लिखूंगा कि कला डू लिखूंगा? आई कैन डू लिखांगे ना, यस और नो। सो नीड कला जिहड़ा वर्ड है ये वर्ब है, डेयर कला जिहड़ा वर्ड है ये वर्ब है। बट जो आप नीड दे नाल नॉट लगाता, डेयर दे नाल नॉट लगाता, है कि बन गए मॉडल्स। सो मैं इदा नहीं लिखूंगा, इदा लिखूंगा। इस करके क्योंकि ये मॉडल्स है, सो जो मैं इधर लिखा यू नीड वर्क हार्ड नहीं, सो मैंने लिखना चाहिए यू नीड टू वर्क हार्ड, बिकॉज ये मेन वर्ब है। सो एक ही हो गया इन्फिनेटिव। ही डेयर्स टू गो इन द डार्क, सो ये मेन वर्ब है, एक ही है इन्फिनेटिव। बट जो मैं नीड नॉट कमा, डेयर नॉट कमा, ये मॉडल्स है। की है मॉडल्स है। दैट मीन्स एक तो बाद फिर मैं सीधे लिखूंगा वर्क या गो, क्योंकि मॉडल्स मेन वर्ब नहीं होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। की होंगी? हेल्पिंग वर्ब। सो इस करके मैं सीधे ये वर्ब लिख दूंगा। इज इट क्लियर? मैंने दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं? जो तुम मॉडल्स की कैटेगरी लिखोगे ना, जो मॉडल्स लिखनी जिन्नियां भी होंगी लिख लो, लिखनी है तो लिखो मॉडल्स किहड़ियां होंगी। देखो कैन, कुड, मे, माइट, मैंने याद करा दियो, विच मैं करा दूंगा तुहानूं सारियां, ठीक है। किहड़ियां लिखा मैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैव टू, किहड़ा किहड़ा कह रहा मैं? हैव टू, यूज्ड टू, ought to, need not, dare not। सो ये सारियां मॉडल्स है। एक बार रिपीट करो मैं किहड़ियां लिखाई हैं। ये सारियां की है। जे तुहानूं कोई यही पूछे कि नीड ये की है, मॉडल है, तुसीं की कहोगे? बट जे तुहानूं कोई ये पूछे नीड नॉट की है, मॉडल है, बिल्कुल। जे तुहानूं कोई पूछे डेयर नॉट की है, मॉडल है। डेयर की है, वर्ब है, मॉडल। की समझ आता है ये? अच्छा
सो आपां नूं समझ आ गया कि परफेक्ट इन्फिनेटिव शुड बी यूज इन द एक्शन एक्सप्रैसड बाय द इन्फिनेटिव। सो परफेक्ट इन्फिनेटिव है वो एक्शनस है ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਵਰਬ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਅਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕ। uttered, utter, U double T E R, the word utter means speak। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹ ਵੈਸੇ utter something, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? utter something, ਬੋਲ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੈਸੇ there was a utter silence in the class, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਟ if I say there was a utter silence in the class, मैं तो बोलन बारे गल नहीं कर रहा, मैं की कह रहा? कंप्लीट साइलेंस। इत्थे लिखे है ही एडमिटेड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी। उन्हें एडमिट कर लिया, भाई की एडमिट किया होएगा? बट ऑब्वियस है वही एडमिट कर सकता जो उन्हें पहला कुछ किया होए। नहीं समझ आ रहा तो मैं कितना कहा टू अटर? ही एडमिट टू अटर। उन्हें एडमिट किया कि वो बोलेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, मैं तो लिख सकता ही एडमिट टू अटर दीज वर्ड्स, ही एडमिट टू अटर दीज वर्ड्स। तो समझ आएगा भाई इस तरह नहीं पॉसिबल। अटर एडमिट का मतलब की होंगे कि मन लेना, तो मनना कोई फ्यूचर की गल थोड़ी मननी, अगे वाली एक्शन वाली किद्दां करांगे आपां? ठीक है, सो सानू ये समझ आता है। अच्छा इत्थे लिखा टू हैव अटर्ड, सो इत्थे समझ पा रहे हो? टू हैव स्पोकन। इत्थे हैव तो बाद किहड़ी फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगनी है? थर्ड, क्योंकि टू तो बाद जी मेन वर्ब है आप कहना शो की है हैव ना, ये फर्स्ट वर्ब होंगी है। हैव, हैड, हैड, यस और नो? टू दे नाल हैड आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। की समझ आ रहा है? अच्छा जे मैं पूरे टेंस लिखना हो, क्योंकि इन्फिनिटिव भी एक एक्शन होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? जे मैं इदा लिखना हो, मैं इदा लिख सकता ही एडमिटेड दैट, मैं की लिखूंगा? दैट, पर मैं लिखूंगा ही हैड अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी। मैनू खुशी होगी जो तुम समझ आया था। मैनू हैड अटर्ड क्यों लिखा? क्योंकि जो उन्हें एडमिट किया ना उस तो पहला ये एक्शन सिंपल है। डिनाइड, डिनाइड का मतलब भी की होंदा है? मना कर देना, इनकार कर देना भी। अच्छा किस चीज़ को डिनाई करेगा? मैं इस चीज़ को डिनाई करदा कि जी चीज़ पहला हो चुकी है। जिवें कि ही डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे, ही डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे। उन्हें मना करता सी कि उन्हें उन्होंने कल नहीं देखा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा बट इत्थे जे आपां कहिए आई स्टिल रिमेंबर, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? सो ए तो पहला जो एक्शन है टू हैव मेट यू इन शिमला लास्ट ईयर, आई स्टिल रिमेंबर आई मेट यू इन शिमला लास्ट ईयर। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? पास्ट द एक्शन है। ये समझ पा रहे हो? ये आप वैसे कर लिया सी, तुसी एक बार फिर नोटिस कर सकते हो। प्रैपोजिशन शुड बी यूज इफ रिक्वायर्ड आफ्टर इन्फिनेटिव व्हेन द इन्फिनेटिव क्वालिफाइज द नाउन। जे नाउन तो बाद की आंदा है इन्फिनेटिव, जनरली ध्यान रखना इन्फिनेटिव तो बाद नाउन आंदा है। जिवें आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग नाउन है साडा, वो बाद चो आया। की समझ पा रहे हो कि नहीं? बट इतने जो पहला होवे फिर की होएगा? सो जिवें कि आई गेव हिम की ए पेन टू राइट, सो टू राइट, सो आप राइट नूं पूछांगे राइट किहदे नाल? पेन राइट, राइट विद पेन, ठीक है। सो इत्थे आप की लिखांगे? विद। These days no airline is safe to travel, so airline is safe to travel by
ठीक है, ट्रैवल बाय इत्थे क्या है एयरलाइन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, आई हैव नो बुक टू रीड। ਇੱਥੇ मैं कोई प्रैपोजिशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि रीड इन, रीड ऑन, रीड एट ऐसा कुछ नहीं होता। रीड तो बाद सीधा ही होता बुक, नहीं। ही गेव मी ए पेपर टू रीड, इत्थे भी कुछ नहीं आना क्योंकि रीड तो बाद सीधा ही आंसर आ सकता है बुक या पेपर। रीड आउट पेपर क्यों बोलन दे लेके नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रीड आउट दिस स्टेटमेंट, सो दैट मीन्स तुसी सिर्फ उन्हें देखोगे, देख के पढ़ोगे नहीं, बोलोगे भी नहीं। हो सकता है उदा होवे तां, बट वो रीड आउट इकट्ठा होएगा। जिवें मैं कल्ला टेक कह सकदा, टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब क्या होता है लेना, गिव का मतलब क्या होता है देना। सो जे मैं कहां टेक ऑफ की ओदा मतलब लेना है, जे मैं कहां जहाज टेक ऑफ कर रहा है वो चेंज हो गया मीनिंग, हालांकि उत्थे वर्ड किहड़ा आया टेक। नहीं समझ आ रहा, तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऑफ लगा दोगे तो ਉਹਦਾ टोटली मीनिंग की हो जाएगा चढ़ना, टेक ऑफ। नहीं ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं। नैक्सट एक आप अबॉर्शन करते हैं जिन्होंने आप कहने स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट जे इधर लिखे है तो उन्हें समझ आना चाहिए कि गलत है। सो तुम ईजीली पेपर च आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्प्लिट इन्फिनेटिव की होंगे, इन्फिनेटिव तो सूँ पता है 2 + वर्ब V1 होंगे। दैट मीनस ये मैं कुछ नहीं लिख सकता, मतलब ये इन्फिनेटिव मैं स्प्लिट नहीं कर सकता क्योंकि इकट्ठा होंगे। इधर लिखे यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे फॉर सम टाइम, गलत है। हुण काइंडली स्टे थोड़े होगा, काइंडली तो की होएगा, रिक्वेस्ट ही किया होएगा, यस और नो। सो इधर लिखांगे यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू स्टे फॉर सम टाइम। अगे यू आर रिक्वायर्ड टू एट लीस्ट ओबे योर पेरेंट्स। सो गलत हो जाएगा ना, टू एट लीस्ट ओबे। सो आप की लिखांगे यू आर रिक्वायर्ड एट लीस्ट घट्टो घट टू ओबे योर पेरेंट्स, जो होर किसी को नहीं करना था। यस नेक्स्ट है आई एडवाइज हिम टू केयरफुली कैरी द बैग, टू केयरफुली कैरी, गलत हो गया। हुण एडवाइज तो केयरफुली नहीं होएगा, कैरी होएगा केयरफुली, फिर मैं इस तो बाद लिखना चाहिए कैरी तो बाद। सो आई एडवाइज हिम टू कैरी केयरफुली, मतलब सावधानी दे नाल उन्होंने फड़े। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। द बैग ये समझ आंदा है कि नहीं आंदा। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर एग्जाम, बड़ा कॉमन पोर्शन है बट ये गलत है, इधर नहीं बोल सकते आप, लिख नहीं सकते। हुण सीरियसली रिक्वायर्ड तो नहीं होएगा, सीरियसली तो स्टडी होएगा, यस और नो। सो द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टडी सीरियसली फॉर एग्जाम। मैनू दसो कि ये समझ आंदा है कि नहीं आंदा, कि पूछना है चो नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। देखो हुण क्विकली तुसीं की करना है ना, चो इन्फिनेटिव्स लभने, बड़ा ही सिंपल है। इन्फिनेटिव लभना औखा है नहीं, देख लो वर्ब दे मूरे टू कितने लिखे है। इफ आई से टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। हुण जे मैं तुहानूं कहां बई की सौखा है, फॉल्ट इज ईजी है कि लभना ईजी है, नहीं समझ आया। देखो तुहानूं समझ आएगा ये मेरा की है सबजेक्ट, जिवें क्यों लिखा सी ना हंटिंग एनिमल इज नॉट अलाउड। सो उत्ते कि मैं एनिमल थोड़ी कहना सी इज नॉट अलाउड, मैं की कह रहा हंटिंग इज नॉट। फॉल्ट इज ईजी नहीं है, लभना सौखा। लभना सौखा है, की लभना सौखा है, गलती लभना सौखा है, फॉल्ट लभना सौखा है। कुछ समझ लो, इतने फॉल्ट इस करके आ गया क्योंकि मैं फाइंड नू वट पुछ सकदा,
वो इस करके क्योंकि कित तो बनता है वर्ब तो, ये कुछ फीचर्स होंगे वर्ब दे। टू एर मीन्स मिस्टेक, अर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मिस्टेक, मिस्टेक नाउन है वैसे, अर वर्ब है। टू अर इज ह्यूमन, गलती करना ह्यूमन है। ठीक है। आई डू नॉट मीन टू रीड, इतने इन्फिनेटिव की है टू रीड। ध्यान रखना इतने थोड़ा मेन वर्ब की है, आ थोड़ा की है, आ की है। जे मैं हटा दा तो आई मीन टू रीड, मेरा मतलब सी पढ़ना, फर्दर। इज इट क्लियर? I had no choice but to obey. So आकी infinitive. The speaker is about to begin. The greater pleasure is to sing. This is not the time to play. Everyone wishes to enjoy life. My desire is what? To see you again. I'm not afraid to speak the truth. It is delightful to hear the sound of the sea. I'm sorry to hear this. Is it clear? सो देखो आप कि इदा कर सकते हैं कि दो सेंटेंसेस अलग अलग है, सॉरी, तो उन्होंने आप इकट्ठा कर दिए। He did not have even a rupee with him. He could not buy a loaf of bread, a piece of bread. दो सेंटेंसेस है, वो पैसे नहीं है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ब्रेड ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ नहीं खरीद सकता। He did not have even a rupee with him to buy a loaf of bread, मतलब वो को पैसा नहीं सी, दैट मीन्स वो आगे कुछ नहीं कर सकता। क्या समझ आंदा है? एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन, ठीक है, वो कैप्टन किसी ना किसी चीज लिए होएगा। फिर ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स, ऐसा और नो? अच्छा, फिर इधर आ गया, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। कंबाइन हो गया। अच्छा, यू मस्ट पार्ट विद योर पर्स। पार्ट की होंगे अलग होना, की होना? ऑन दिस कंडीशन ओनली यू कैन सेव योर लाइफ। मोस्ट लाइकली की होएगा, एक थीफ होएगा जो कि एक दूसरे पर्सन के मोरे खड़ा होएगा, तो मोर को कोई गन होएगी या चक होएगा, तो उन्होंने की कहेगा अपना पर्स अलग कर दे, सिर्फ ताई तेरी जान बच सकती। ठीक है, सो दा मतलब जो अलग होएगा ताई फिर वो अपनी जान बचा सकेगा। सो मैं इस तरह कह सकता, यू मस्ट पार्ट विद योर पर्स टू सेव योर लाइफ। जिदा करेगा तो ऐदा होएगा। द रॉबर टुक आउट ए नाइफ, ठीक है। ही इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है इच्छा होना, की होता है? वैसे आई इंटेंडेड टू गो देयर, मेरी इच्छा है कि मैं उत्थे जावां, या मेरी इच्छा सी कि मैं उत्थे जांदा। He intended to fight the old man. The robber took out a knife to fight the old man. सीधा भी आ सकता है। I speak the truth, I am not afraid of it. I am not afraid to speak the truth. Is it clear? सो ये कुछ सैक्शनस है, तुसी इनू रीड करना है। उस तो बाद जो नैक्सट पोर्शन आना है वो क्या आना है? जिरेंड।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਬਾय ਸਲਾਈਡ।